Hello and welcome. So today we'll be having a very short class, and today just I'm having I will deal with some of the motivational stuff. Okay, so your exams, your INICT is coming. INICT is coming here, so it's closing very near. So now what you should remember and for INICT and basically maximally most of you might be preparing very well. Some of might be very much anxiety, some of might be showing anxiety. Okay, so basically you would be your anxiety level might be very high, and some of you might be even depressed. Okay, so now डिफरेंस दैट अब क्या करना है, इतना सब कुछ हो गया, 10-20 दिन बचे हैं. सो बेसिकली ओनली 20 days अराउंड, एंड बेसिकली अब सिर्फ 20 दिन बचे हैं. अब क्या करना है, कैसे करना है, कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसा पेपर आएगा, फर्स्ट टाइम एंड ऑल दिस हेल. सो बेसिकली नाउ द फर्स्ट थिंग इज स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस ऑल थिंग. ओके, सो स्टॉप थिंकिंग, ये सब बंद करो. डोंट जस्ट कीप वॉकिंग, डू योर वर्क, जिस अपना काम करते रहो, कीप वॉकिंग एंड जस्ट नाउ believe me, 90% of the people they give up at the final, are very near to the target, they're near to the journey. Okay, end of the journey, उनकी जर्नी का एंड होने वाला होता है, वहाँ पे गिव अप करना है. यू शुड नॉट गिव अप, अभी गिव अप नहीं देना है. 20 दिन आर ऑल्सो यू कैन इन दिस 20 days also you can do lot of things. Okay, in 20 days also you can just prepare, or you can make a strategy where you can, if you have prepared once, or if you are prepared once, एक बार पढ़ा हुआ है, तो you can just give a last fight, give your fight till the last day. So you should give. Okay, आपको fight करना है, because obviously यू नीड टू क्रॉस दिस वॉल, ये वॉल क्रॉस करना है, और इस वॉल को क्रॉस करने के लिए यू नीड टू फाइट. ओके, सेटबैक्स, यू माइट बी हैविंग डिफरेंट सेटबैक्स, यू माइट बी हैविंग different works and all, but relax, follow your routine, just focus on your target and keep on walking. Don't think about exam में क्या होगा. ठीक है, don't ever think about exam में क्या होगा. So myself, I am Dr. Anil Sharma, and I have been teaching you pathology. So today just since only 20 days, so I just want to discuss something, the way you can prepare, what I have seen or I have listened from different people, some of my seniors, some of my teachers who taught me, and obviously my own experience I want to share. And in these 20 days, and just don't panic, no need to be panicking. Okay, so you just give your 100%. Okay, if you fail after giving 100%, you yourself won't have a mind. Okay, you won't have a mind. आप कुछ भी कर लो, just ask yourself. After that, you ask yourself, did you give that 100%? Then if your question is no, then obviously you will feel guilty. Study देख लो, even study, sex, everything. Okay, in anything, then just ask yourself, is this, can you do better than this? And if your answer is yes, then obviously you will feel guilty all your life. So अपना 100% दो, give your 100%. Then also you are failing, that means okay, then we can just think of some processes where we can change. Okay, हमारी गलतियों को फिर निकाल सकते हैं. आप अपना 100% ही नहीं दिए हो, तो basically there is nothing you can do. Okay, so best go, give your 100%. You have 20 days, so you make a strategy, a plan itself today for in 20 days. So what you should read and how you can read in the 20 days, and just I'll just give a brief ideas about how you can read in these 20 days and what you should cover. Okay, so let's start with today's topic. So today I'll be talking about some important motivational stuff. So belief. So first thing you need to have is within yourself is belief. Okay, just get belief in yourself. And the second you should have is confidence. Okay, so you should be confident. So be confident, believe on yourself and be confident. So believe on yourself and be confident. So these two things will obviously will lead to you, or will just make you work hard till the last day. Okay, if you believe on yourself. So there is a very beautiful story of elephant and rope. So इसमें क्या होता है, एक बंदा होता है जो कि एलिफेंट कैम्प के थ्रू जा रहा होता है. सो वो क्या देखता है, जस्ट सी एवरी एलिफेंट दे आर टाइड बाय अ वेरी वेरी थीन रोप. एक बहुत पतली सी रोप से टाई किया गया है. सो वेरी थीन रोप, एंड बट नॉन ऑफ द एलिफेंट वॉज ब्रेकिंग इट एंड रनिंग अवे. ओके, कोई भी एलिफेंट नहीं कर रहा था वैसे, एक बहुत पतली सी रोप. एंड ऑब्वियसली ये रोप बेसिकली अगर कोई भी एलिफेंट खींचता, ईजिली वो इसको ब्रेक डाउन कर सकता था. ओके, सो बेसिकली दिस रोप, सो सरप्राइज होके वो बंदा उसके
मालिक से पूछता है, ओके, दिस ट्रेनर से पूछता है कि why this none of the elephant no are running away, why not they are not running away by breaking this rope. So he says that this we used to tie these elephants with this small rope when they were small, and since then we are tying with them with the same rope. Okay, so this elephant, they were never bound by the ropes. Okay, they were never bound by the rope, but they were bound rather by their own belief, that they believe that, so they have from the very beginning they had a belief that कि ये हम इससे हम छूट के नहीं जा सकते. ठीक है, सो नाउ यू ऑल्सो नीड टू बिल्ड इन योर सेल्फ अ बिलीव दैट, डोंट बिल्ड अ बिलीव दैट कि आप क्लियर नहीं कर सकते एग्जाम. ओके, you can clear. I have a lot of example, even in my previously also I said, even in my case I had a friend who just had a belief, who had just believed that he can clear exam, and who had believed that, and who was confident enough, and believe me, he was working as a medical officer. He was working as a medical officer in emergency. So emergency में medical officer के काम करता था, and that guy, so so in emergency, see, if you're working as a medical officer in emergency, you don't have time to study. So this guy, he used to just, and I just I never saw him reading. Okay, so I never saw him reading, and actually he didn't used to study also. So जो वहाँ पे कर लिया, और 2-4 MCQs आके लगा लिया, past year questions कर लिया. So before exam 3-5 days also he was doing past year questions. So 5-6 दिन पहले भी past year questions कर रहा था. And but the best thing was he was neither panic, so he was no panic sign in his body. Okay, and he was confident, and he had belief on himself. Even I made him on the day before exam, I asked him, so bas you look so cool and all, and this he was so confident कि ये मेरा होगा 100% होगा. So he was very much confident about himself, and he had belief. And just in the AIIMS exam, he just attempt 185 question. Okay, 185 question, he was selected, and he got pediatrics. Okay, so he got pediatrics, and he have now by now he have passed also pediatrics. So he have passed pediatrics, and he is now working, he's working in a reputed hospital. So now basically as a consultant. So now what you need to know is, if you have a belief and confident, you can easily do everything. So this is a belief and confident story which I have seen myself. Okay, so this, you are not bound by the rope, or you are not bound by anything, any the question इन सब से नहीं. अगर आपको बिलीफ है, आप उस क्वेश्चन का आंसर कॉन्फिडेंटली कर पाओगे, बिकॉज कहीं ना कहीं 5 साल में, और प्लस विथ कोचिंग एंड ऑल, एंड ऑब्वियसली ग्रेट इफोर्ट बाय ग्रेट टीचर ऑफ अनअकैडमी ऑल्सो. अनअकैडमी के टीचर भी बहुत अच्छा ग्रेट इफोर्ट लगा रखे हैं ना, एंड इवन एट डिफरेंट प्लेसेस. एंड ऑब्वियसली यू माई ऑब्वियसली आप हर कोई डिफरेंट कोचिंग सिस्टम से भी अटैच्ड होता है. सो बेसिकली यू हैव बीन यू जो भी क्वेश्चन आएगा, बिलीव मी, आप विश्वास करो कि आप कहीं ना कहीं वो सुन रखे हो, कहीं ना कहीं वो कर रखे हो, कहीं ना कहीं आपने उस चीज़ के बारे में देखा है, पढ़ा है, सुना है. ठीक है, सो बेसिकली ये आपका जस्ट सबकॉन्शियसली माइंड में बसा हुआ है. और इन एग्जाम डे व्हेन यू सी क्वेश्चन, एंड इफ यू बिलीव एंड यू कॉन्फिडेंट इनफ कि आएगा, वो क्वेश्चंस के आंसर खुद आना शुरू हो जाते हैं, खुद आना शुरू हो जाएगा, खुद आपको लगेगा कि हाँ यही इसका आंसर है. सो जस्ट क्योंकि आंसर आपके सामने है. इट्स नॉट दैट एनीबॉडी इज हाइडिंग द आंसर. ओके, आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू, द आंसर विल बी इन फ्रंट ऑफ योर आईज. ओके, क्वेश्चन भी आपके सामने होगा, आंसर भी आपके सामने होगा, कुछ भी एकदम, ये तो क्लियर कट पर्दा फास्ट एग्जाम है. ओके, सो एवरीथिंग विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, no matter. And obviously if you believe and confident, then you can do. I have also another story about confidence. Basically what is this, कि when you are confident, then you can just achieve whatever. So I have an example of my 2 friends. So okay, confidence in one just what in first attempt this guy, he just got gyne. Okay, he just got gyne in the first attempt. So but he was confident even, and he believed in himself that he can just leave that gyne. He just he would not take that gyne, and he can just, because his dream was to get orthopedics, and he basically he just gave in the second attempt. Okay, and he just passed orthopedics
okay, at PGI. So he got orthopedics as PGI. So basically, so if you believe on yourself, if you are confident enough, then you can do anything. Okay, you can do anything. It's not a big task. It's not anything that impossible task. A lot of people before than you, they have done. आपसे पहले बहुत लोगों ने किया है, आपसे बाद भी बहुत लोग करेंगे, ठीक है. So it's basically you, it is the elephant was not bound by the rope, rather it was bound by his own belief. Okay, so what about you? Are you also bound by your own belief that you can't do that? Come on, you have cleared you have cleared your MBBS, you have passed your MBBS, you have been studying, for whole year. Okay, and some of you might be studying for more than year. Okay, and so basically now also if you believe that you can't, then that's not fair. Just believe on yourself, believe, आप अपने आप को believe करो. That is what the most important thing. Okay, so why not we fight for our wants? Just fight for our dreams, our hopes. So you just fight, you give a try for your dream, for hope, for whatever you are dreaming for your, or some of you might be dreaming as a radiologist or medicine देना है, surgeon बनना है. So think about that. Okay, think about that and believe that you can do. Why not? Why do we accept defeat so easily? You don't defeat is accept easily. So why not fight for everything, face everything until you succeed? So just face everything. You just, this is the last part of your fight for 20 last अगर आपका एम्स और पीजीआई या जिपमर आपका ड्रीम है, तो ये आपका लास्ट पार्ट ऑफ फाइट है. और अब आके तो आपको स्टॉप नहीं होना है. जस्ट गिव योर डोंट स्टॉप कि नहीं अब नहीं होगा. बेसिकली व्हाट वी डू, हम लास्ट में आते आते अरे अब नहीं होगा, अब मैं अगले साल के लिए, नो, अगले साल भी इस टाइम में आके ऐसा ही होगा. This will be the this is a chain. It will repeat again and again. We believe me, you will be doing same thing next year also. So don't leave for next year. Don't leave for next year. इसको अभी ख़त्म कर दो, अभी ख़त्म कर दो. 20 days आप इसी, अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ा है तो 20 days give a try. Don't just go without trying. Give a try. क्या पता हो जाए, ठीक है. गिव अ ट्राई. सो आवर ड्रीम बिकम्स रियलिटी. वाई is the fear of fear binding us from our dreams? So just don't fear of failure. आपको failure से fear नहीं करना है, ठीक है. So you should be confident, as I said. So now just Indians, as we Indians, we can just, he is a very inspirational person. Okay, so basically some of you might not be fan of him, or some of you might be not knowing him. Some of you might be a fan of Virat Kohli. Okay, Virat Kohli is also doing lot of thing. It needs courage like Virat Kohli. As I hear, he have been not taking butter chicken for at least for 2 years from now. So basically he have been not eating chola bhature. So chole bhature from so many long time. Okay, so basically that needs a dedication. So this is basically, so he's my generation. So you can have you can follow Virat Kohli also. But yeah, Virat Kohli and he have a different success story. So now this guy, basically he what is that which makes this a simple human? He's a simple human being. Okay, he's not anything other. He's a simple human being. But what makes this simple human being with flesh and bone as immortal? Why we call him God? Why people believe he is God? Okay, so basically the sentence is obviously you will get the answer again. What is this? Obviously, what is this? So this is basically after his dream is coming true. Okay, in 2011 his dream is coming true. He has been playing good since very long time, but yeah, in 2011 he got his dream true to lifting a World Cup, or being a member of a World Cup winning team. Okay, so basically we too have, there is Sachin in each one of us. Okay, so now there is Sachin in each one of us, and we just need to nurture him. You just need to nurture him. He is not, ये ऐसा नहीं है कि God gifted बना. He has nurtured himself. He has worked hard. He has given his time to this game. He has given his time to batting. He has given time to for the practice, and hence today he is there. Okay, आप basically what I say, monotonous. He has made his life monotonous. So basically he had laid you, and success, what I believe is success is basically, अगर आपको success होना है तो success is basically your अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको लाइफ मोनोटोनस बनाना पड़ेगा. ठीक है, आपको मोनोटोनस बनाना पड़ेगा.
So your life should be monotonous, your life should not have उबड़ खाबड़ नहीं होना, it should be going in a similar pattern, like आपको daily 16 hours पढ़ना है तो daily 16 hours ही पढ़ना है. So that is your monotonous. आपको एक ही routine, जैसे आपका monotonous life है, आपको हमेशा रोज किताब खोल के पढ़ना है. So that is पढ़ना ही पढ़ना है, आपको life monotonous बनानी है. If your life is monotonous basically, then only you can be success. You just go and see every successful, हर कोई का routine यही होता है. For 30 years, okay, for 20 to 25 years old, okay, for 20 to 25 year. So basically this guy who is 47 now, and he just retired around 40. So basically for a lot of, and playing from 16, okay, so lot of thing, for 24, more than 24 years, I guess, so more than 24 year, this guy, he had a same routine, he had same routine जो कि पहले दिन से था. He had same monotonous life, he had same monotonous life. The only thing was he used to enjoy his game. So now you also need to enjoy your study. Enjoy करो, इस पल को enjoy करो, enjoy reading. So reading should be that thing which secretes your dopamine. ना कि मोबाइल चलाना should not be secreting your dopamine, but reading should be secreting your dopamine. So you should make your mind such that आपको उस चीज़ में मज़ा आ रहा हो, ठीक है. सो बेसिकली that is one very important point for being successful. Just so this, you can just take inspiration from him. So this guy, he had fair share of failures, okay. He had injuries, he had bad form, he had tennis elbow, he was like one of inning, if you remember, those, or I can just make you in the Australian series, one with Australia, he had a series where he was getting out playing ball which was on the offside, okay. So the swinging ball, he was getting out playing that. So in one inning, what he did, he just you can see that inning, he didn't even play one shot towards offside, okay. Off के तरफ उसने shot नहीं मारा, सब leg side, and just he scored around 242 runs, okay. So 242 runs, remember. So it's a double century. So basically if you are so this, you should be basically, you should know to adapt things, you should know to adapt. So आपको भी adapt होना है, ठीक है. अब आपके पास 20 दिन है, आप adaptation लाओ अपने आप को, adaptation ला के ऐसा प्रिपेयर करोगे आप 20 दिन में पूरा टॉपिक, पूरा कोर्स एक बार कंप्लीट करके जा सको, ठीक है. सो यू जस्ट नीड टू एडप्ट टू दैट थिंग, यू डोंट नीड टू पैनिक, आपको पैनिक नहीं होना है और एडप्ट होना है. सो बेसिकली, बट ही नेवर दिस बिलीविंग हिमसेल्फ, ही यूज्ड टू बिलीव हिमसेल्फ ही कैन डू, एंड ही वर्क हार्ड, इवन हार्डर टू बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर देन एवर. So there has been lot of time when people did write of Sachin, but basically he never stopped and he just came back stronger every time, okay. So never give up when the times are tough, as the night is darkest before the dawn and the dawn is coming, okay. So basically you should never give up when time are tough. So now it's time, don't give up. It's obviously it's tough time. Some of you might be thinking अरे अब नहीं होता just so, but don't give up. 20 days, क्या पता है, ये 20 days can make a lot of difference. So don't give up, don't give off your working. आपको monotonous बनना है, अभी भी काम करना है, 20 दिन भी काम करना है, नहीं होता है 20 दिन के बाद भी काम करना है. Your work is to study and you need to study. Don't give up and just don't give up. So what made him different? He worked hard every day. Now this is very important sentence. He does work hard every day. You should need to work hard and every day, not कि आप एक दिन कर लिया था. हम what we do, हम एक दिन पढ़ लेते हैं फिर 4 दिन नहीं पढ़ते हैं, and that is basically consistency नहीं है. वो consistency नहीं होगा तो you are never going to success. So basically see his coach, he used to make him play 3 games with 3 different teams every day, okay. So now what you can do, you can also solve 3 papers, okay. You can also solve past 3 papers with past 3 papers, क्योंकि अब तो आपको 3 एग्जाम्स हैं, PGI, AIIMS and JIPMER and NIMHANS. तो चारों का पेपर रोज करो, एक पेपर रोज करो. ट्राई टू फिनिश ऑल दो चारों का पेपर एंड जस्ट सी कि उनमें से क्या कॉमन चीज़ें हैं, क्या कॉमन टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉमन टाइप के क्वेश्चंस को. क्योंकि देखो टॉपिक लगभग एक ही होती है, बेसिकली टॉपिक लगभग एक ही होती है, क्वेश्चंस का मोड डिफरेंट हो जाता है. एंड व्हेन यू बिलीव मी, आपके टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक भी जितने भी एग्जाम हो रखे हैं आप देख लो, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 टॉपिक ही है जो जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं. तो टॉपिक 30-40 ही है, बस उन्हीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, डिफरेंट वे से क्वेश्चन बन रहे हैं, लैंग्वेज बदल जाता है. सो बेसिकली यू नीड टू, आप उस चीज़ को ध्यान दो
कि टॉपिक क्या है, ठीक है, टॉपिक, क्योंकि वो टॉपिक ही है, उसी से आ रहा है, हर साल उसी से क्वेश्चन आ रहा है, उसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंट हो जाता है. सो दैट इज़ व्हाट यू गेट मोस्ट ऑफ द टाइम. ओके, टॉपिक वही होता है. उस टॉपिक में हर एक साल जैसे एम्स एम्स उसी टॉपिक पे देगा बस आपको, लेकिन रिसेंट से दे देता है कि रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुआ है. तो रिसेंट एडवांसेस जो एम्स एम्स इज़ मोर इंटरेस्टेड इन योर रिसेंट एडवांसेस. पीजीआई उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ रिसेंट परसेंटेज, रिसेंट जो बेसिक चीज़ें जो होती है उसी टॉपिक से लेकर बेसिक चीज़ों को घुमा फिरा के पूछ लेता है, ठीक है. सो बेसिकली टॉपिक आपके पास वही होता है, बट जस्ट क्वेश्चन का तरीका बदल जाता है. Okay, so you should put in your 100% every day irrespective of what result you are getting, so that at least at the end of the day you know you tried your best. Okay, so work hard, be calm under pressure. Now this guy, he used to be calm under pressure. So we mortals obsess over small thing which burden us. Okay, so now आप अभी भी बर्डन हो रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कि कैसे करेंगे, कैसे होगा, कैसे कैसे किया जाएगा, इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे किया जाएगा. सिट डाउन, रिलैक्स, रिलैक्स करो, नो, चिल. देयर इज़ नथिंग टू थिंक अबाउट. आप उस बर्डन के बारे में मत सोचो, उस माउंटेन के बारे में मत सोचो. जस्ट यू थिंक अबाउट कि आपको आज क्या करना है, अभी क्या करना है, अभी के लिए अपना टाइम वो कर लो कि अभी मुझे ये बनाना, अभी मुझे इतना पढ़ना है, ठीक है. अभी आपको एक सब्जेक्ट का टॉपिक चूज कर लो और मुझे वो पढ़ना है. डोंट थिंक, आप उस माउंटेन के बारे में कभी मत सोचो, ठीक है. डोंट बी ऑब्सेस ऑफ स्मॉल थिंग्स. सो बट इफ यू ट्रूली आइडलाइज सचिन, यू शुड लर्न टू बी काम अंडर वॉट एवर प्रेशर. सो हियर जस्ट you learn just to be calm under pressure. Okay, he had been lot of pressure. You just can't be, this guy used to be in immense pressure of, and he had just immense pressure of 1 billion population. Okay, so basically this guy, he entered on the 15th November 1989 as a kid in this world, cricketing world, and on 16th November 2013 he walked out as God. So now that is what you need to know. So now, so obviously you can also work hard, be calm, and just patiently giving working every day. Okay, so best performance, he used to give best performance, and hence he had a lot of achievements. Okay, so this guy, he has passion for cricket, and he was consistently he was doing his work every day he was consistent in his work, and hence success. He got success, and you can see he was really a great successful batsman. And so he just every day every time for 26 years pre-match evaluation he used to do. He used to practice pre-match. Okay, so basically for success you need commitment, you need hard work, and obviously commitment, hard work, along with you need to surrender to God. Okay, so you need to surrender to God also. So anything in this world can be achieved or overcome through the power of will. So you should have power of will, and you can achieve everything, and you can overcome anything. Okay, so you it should be, that is a willpower. You should be committed, working hard, and you should have willpower for the thing to do. Okay, so that is very important. And basically calm, listen, I have seen in my real life also one friend who was very calm and pressure. So I just said before also. So when I was giving my AIIMS exam, so that time one of my friend, 2-3 of my friends, they came to my room, and they just stayed in my room so that they can reach to their center. Basically one of my friend's center was in Janakpuri. Okay, and my own center and other friend's center was at some other place. I just really forgot that, but that friend's one friend's center, I remember it was in Janakpuri. Now that guy, basically he was wrong to inform us, and so we just also thought कि his center is also with us, and our center was in a reachable point. हम उस सेंटर तक लगभग 1 घंटे में पहुंच रहे थे. वो बंदा सुबह 5 बजे उठ के फिर दूसरों को उठा रहा है, ठीक है, कि तैयार हो जाओ, है ना, जाना है. तो बेसिकली सब थे कि सर 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, इट्स ओके. एवरीवन वेर रिलैक्स. ओके, वी आर सुबह उठ के किताब लेके ऐसे पढ़ तो नहीं रहे थे हम. बेसिकली वी वर रिलैक्स, एंड माई सम फ्रेंड्स वेर दे वर जस्ट स्लीपिंग. सो बस अब एग्ज़ाम्स के टाइम से थोड़ा 6-1 बजे अराउंड वो भी उठ गए, रेडी हुए. नाउ देन आफ्टर दैट वॉज जस्ट आई आस्क्ड हिम कि तुम्हारा सेंटर क्या है. ही सेड जनकपुरी. आई सेड अरे नॉर्मली जनकपुरी लक्ष्मी नगर में रह रहे थे हम लोग. तो वहाँ से जनकपुरी पहुँचने में लगभग आपको 1-1.5 घंटा, मोर देन 1.5 घंटा लग जाता है. ऑब्वियसली देर आर मोर देन 22 stations in metro. So now I just said, it will be really late for you. You can't reach to your center before 8:30. It will be closed.
सो जस्ट ही सेड, ही वॉज जस्ट टेंस एट दैट टाइम एंड वो वहाँ चले गए. आई वॉज कंसर्न अबाउट दैट गाय कि आप करोगे कैसे, करोगे कैसे, वहाँ पे पहुँचोगे नहीं पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा. आई वॉज एनी वे बट आई जस्ट गिव एग्जाम एंड देन माई फर्स्ट, एज सुन एज आई केम आउट ऑफ माई फर्स्ट थिंग वॉज टू जस्ट नो दैट कि उसको एंट्री दिया कि नहीं दिया. आई जस्ट ट्राई टू कॉल हिम बट ही डिडंट रिसीव, उसका कॉल नहीं लगा. थोड़ी देर बाद फिर से मैंने कॉल किया तो उसने कॉल उठाया. देन आई जस्ट सेड कि वेयर आर यू, आई आस्क्ड हिम एंड जस्ट ही सेड आई एम एट होम, just I've reached at home. So I said you reached at home, so you gave your exam, how your exam? Then उसने बोला कि मुझे अंदर जाने नहीं दिया, मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया. So he missed एम्स का एग्ज़ाम एंड दैट गाय बेसिकली एग्जाम नहीं दिया. एंड जस्ट आई सेड ओके आर यू ओके, देन ही सेड यस आई एम ओके. फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आई जस्ट डिड, नेगेटिव थॉट्स आए थे मेरे में. मैंने सोचा मैं उस बंदे की जगह पे होता तो आई वुड बी, मैं काम कभी नहीं रह पाता, मैं तो कुछ अनहोनी कर लेता. बट दैट गाय ही वॉज सो काम, ही वॉज जस्ट, ही स्माइलिंगली सेड मी इट्स ओके नो प्रॉब्लम एंड रिमेंबर दैट गाय हैड रियली उस टाइम में अगर वो एग्ज़ाम देता, आई एम 100%, मैं श्योर था वो इतना वेल प्रिपेयर था कि वो उसमें उसको उस टाइम में वो सिलेक्शन हो जाता. देन ही जस्ट गेव आफ्टर 6 month, एम्स में ही दिया. एम्स में ही जस्ट गॉट जनरल सर्जरी एंड नाउ एट प्रेजेंट ही जस्ट हैव क्लियर्ड ऑल, पास भी कर लिया है. एंड जस्ट एट प्रेजेंट ही इज़ डूइंग हिज MCH, ओके, यूरोलॉजी में. सो MCH कर रहे हैं. तो बेसिकली सी इफ़ यू काम, जस्ट बी काम, डोंट पैनिक. आप पैनिक मत होना, कुछ भी नहीं, जस्ट कीप ऑन डूइंग योर वर्क एंड ऑब्वियसली यू विल बी सक्सेसफुल. सो डोंट पैनिक नहीं होना है. ओके, सो एंड योर सक्सेस with my success, okay, so you just need to, your success will be my success, okay. So you, as basically those who are listening me are my student and obviously your success is my success. And always draw a plan for the next day before you sleep. Now just draw a plan, make a plan before every day before you sleep. So now remember, this is a line when one of my teacher used to say me every time, so what is written in your faith nobody can steal from you, and if the mighty so blesses you, you can get that which you would never have been yours, okay. So when you are devoted, when you are dedicated, when you are working hard, okay, when working hard, then obviously you can get everything. And so just work hard and even then God will come and help you, okay. So just don't be devoted, and whatever you have in your faith you will get that, and if you are devoted then you can get that also which is not in your faith, okay. So just be devoted. Now we're coming for INICET. so आपके पास 20 दिन है. so INICET, so basically INICET क्या है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है and the duration is basically 3 hours, and for now we know that there will be 200 objective questions and that will be have लाइक PGI का पैटर्न होगा, ठीक है. सिंगल करेक्ट चॉइस भी होगा, मल्टीपल करेक्ट चॉइस भी होंगे. सो यू कैन गेट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. एंड ऑब्वियसली आपके पास निमहैंस भी है, जिपमर भी है, तो जिपमर टाइप के क्वेश्चंस और सब टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. और यू कैन से बेस्ट ब्रेन इन इंडिया विल बी मेकिंग क्वेश्चंस. सो बेसिकली क्वेश्चंस दे विल बी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ओके. सो बेसिकली और आप एंड फॉर नाउ वी डोंट नो कि इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा. बट एनीवे जो एम्स का था होता था वो उसी टाइप का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लगभग होगा. या PGI गिव्स मोर एम्फोसिस टू, जैसे कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में ज़्यादा वो देता है. इवन एम्स ऑल्सो लाइक्स गिविंग मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी. सो उनसे आ सकता है बेसिकली, बट योर पैटर्न विल बी मोर और ऑफ लाइक दैट. एम्स क्वेश्चन के जो पैटर्न होंगे एम्स के जैसे होंगे. नाउ व्हाट, आप इस 20 दिनों में क्या करना है आपको. सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ डोंट रीड न्यू स्टफ. आपको अभी कुछ नया नहीं पढ़ना है, ठीक है. नया खोल के, कुछ नई चीज़ खोल के, नया क्वेश्चन आपको दिख गया या कोई क्वेश्चन कर लिए, है ना, तो डोंट रीड न्यू स्टफ. आपने जो पढ़ा है उसी चीज़ को पढ़ो, ओके. आप नया चीज़ पढ़ोगे यू विल बी कन्फ्यूज. नई किताब से मत पढ़ो, नई जगह से मत पढ़ो. आपने जो नोट्स पढ़ा है, आपने जो पढ़ रखा है उसी चीज़ से पढ़ो. डोंट गो एंड रीड न्यू थिंग्स और न्यू टीचर और न्यू जस्ट. अभी सपोज आई हैव बीन टीचिंग यू पैथोलॉजी, अगर आप मेरे से नहीं पढ़ रहे थे तो जस्ट मेरे नोट्स और मेरे वो मत देखो, बिकॉज आई हैव अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ टीचिंग एंड यू माइट नॉट लाइक, एंड एक्चुअली पीपल आर नॉट लाइकिंग ऑल्सो. सो बेसिकली देर आर आई हैव मैं डिटेल पढ़ा रहा था. बेसिकली फ्रॉम टुमारो
आई हैव प्लान कि आई विल बी टीचिंग यू कि जो आपके पैथोलॉजी से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हर एक चैप्टर और हर एक वो रैंडमली उन स्टॉप्स को रख के, जैसे कि टेबल, इमेजेस और क्वेश्चंस एंड इम्पोर्टेंट लाइन्स, इम्पोर्टेंट वर्डिंग्स, सो वो मैं कलेक्ट करके एंड आई विल जस्ट बी गिविंग यू फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज, लाइक वैसे ही करेंगे हम, ताकि मैं आपका पैथोलॉजी कवर कर दूँ जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। सो जस्ट रिवाइज एंड कंसंट्रेट व्हाट यू हैव रेड एंड ऑन द इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो नया टॉपिक नहीं लिखना है, आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, जिस टीचर की स्लाइड्स देखे हैं, जिस टीचर्स के नोट्स आपने लिए हैं, उसी से पढ़ो, उसी चीज़ों को ढूंढो, नए स्टॉप्स को ऐड मत करो अभी ठीक है, नए चीज़ों को स्टॉप ऐड मत करो। एटलीस्ट इफ़ यू आर गिविंग INICET, एंड इफ़ यू आर गिविंग INICET नहीं, दो एग्ज़ाम दो। अगर आपने भरा है फॉर्म तो एग्ज़ाम श्योर दो, ऐसा नहीं कि आप प्रिपेयर नहीं हो तो भी एग्ज़ाम दो, डोंट मिस योर एग्ज़ाम। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेसिकली रिमेंबर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होता है, 30 से 40 ही होता है। सो पहले उस 30-40 टॉपिक्स को आप एक पेपर पे लिख लो, ठीक है। 30 to 40 टॉपिक्स ही होते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूरे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उन 30 से 40 टॉपिक्स को पढ़ लो, है ना। उस 30 से 40 टॉपिक को अगर आप आवरली अगर आप उस हर टॉपिक को 3 घंटा या 4 घंटा भी देते हो, तो समझो 40 टॉपिक है, आप 4 घंटा देते हो, आप 160 घंटे में पूरा कवर कर रहे हो कोर्स, ठीक है। आप अगर एक को 10 घंटे भी देते हो तो यू आर जस्ट कवरिंग इन 400 आवर्स। सो बेसिकली अब आप पूरा कोर्स नहीं कर सकते, जस्ट बी सेलेक्टिव, सेलेक्ट 40 टॉपिक्स और 50 टॉपिक्स जो कि पूछा गया है, ज़्यादातर रिसेंट एग्जाम्स में पूछा गया है, वहीं से क्वेश्चन आएंगे, उन्हीं टॉपिक को सेलेक्ट करो और सी इन 4 आवर्स यू आर कंप्लीटिंग योर कंप्लीट टॉपिक। सो कंप्लीट आप कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, इन 400 आवर्स। सो बेसिकली दैट इज़ इंपॉर्टेंट, अगर आप 10 घंटा एक टॉपिक को दे रहे हो तो, ठीक है। सो 40 टॉपिक्स कोई ज़्यादा नहीं, और इससे ज़्यादा होंगे भी नहीं। अगर आप क्लेवरली कर रहे हो तो यू कैन जस्ट सेलेक्ट 40 टॉपिक्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट टू। उतना पढ़ के जाओ, उतना पढ़ के जाओगे, देर आर हाई चांसेस ऑफ, और अगर आप सब कुछ पढ़ने की कोशिश करोगे देर आर वेरी लो चांसेस। हाँ, दो अगर सब कुछ सब तब पढ़ोगे आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो, आपको कॉन्फिडेंट है कि आप नेक्स्ट 20 डेज में रिवाइज कर सकते हो, तो सब कुछ पढ़ो, ठीक है। और आपने बार बार पढ़ रखा है दो, और इफ़ यू हैव नॉट बार बार नहीं पढ़, रिवाइज नहीं कर सक रहे हैं, तो 40 टॉपिक्स को निकालो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को निकालो और उनको पढ़ के जाओ। बिलीव मी, इफ़ यू आर गॉड इज़ विथ यू एंड इफ़ यू आर लकी इनफ और उनमें आपने वेल वर्स किया है, आप उस 40 टॉपिक से ही इतना कर सकते हो, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो जैसे कि अगर आप जैसे तो 200 क्वेश्चंस आते हैं, सो बेसिकली सिलेक्शन व्हाट यू नीड टू, आपको वहाँ पे ये दिखाना नहीं है कि आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट। सो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए सिलेक्शन होना। सो सिलेक्शन नॉर्मली देखो 130, 135 इस रेंज में हो जाता है, ठीक है। इतना क्वेश्चंस आप अगर राइट करते हो तो आपके पास आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो यू नीड टू डू एटलीस्ट 120, 100 क्वेश्चन। आपको 50% पेपर आ रहा है तो भी आपका इनफ है, आपको 50%, आप और बाकी 10-15 इधर उधर आपको थोड़ा बहुत आ जाएगा। सो बेसिकली फॉर सेलेक्शन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको 180 राइट करना है, 170 राइट करना है, आपको टॉपर बनना है। ओके, टॉपर बनना है इफ़ यू आर बेसिकली यस, इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर, बट व्हाट आर योर टारगेट शुड बी कि आपको 50% चीज़ें करनी है। ओके, 50% स्टॉप आपको करना है, और वो 50% स्टॉप आपको कहाँ से हो जाएगा, 20-30 टॉपिक्स अगर आप सेलेक्ट कर लेते हो 100% हो जाएगा, ठीक है। So now how can you study in the last moment? So integrate, as I say, I focus in my classes also, I have always been focusing and I love this word, okay, integration. So आप integrate study करो, आप अपना मेडिसिन, पेडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड इवन माइक्रोबायोलॉजी को एक जगह पे इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। 4 बड़े सब ये 3, मेडिसिन, पेडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी। सो दिस कैन बी इंटीग्रेटेड, ओके। पैथोलॉजी अगेन कैन बी इंटीग्रेटेड विद सर्जरी, जैसे कि आज मैंने बोला कि आप ब्रेस्ट पढ़ रहे हो तो ब्रेस्ट आप, और जैसे मैंने लंग ट्यूमर पढ़ बोला आपको, अगर आप लंग ट्यूमर्स पढ़ रहे हो, लंग के बारे में पढ़ रहे हो, तो बेसिकली आप इंटीग्रेट कर दो ना उस सारे चीज़ को, एक जगह पढ़ दो। क्यों, हाँ, लंग का पैथोलॉजी में पढ़ोगे, ये इधर में नहीं, सब एक जगह एक साथ पढ़ दो पूरा लंग। तो इस तरीके से
क्या होगा, आपको एक कहानी की तरह याद भी हो जाएगा एंड बेसिकली इट विल बी अ फास्ट प्रोसेस। ओके, सपोज लाइक निमोनिया टॉपिक है, ट्यूबरक्लोसिस टॉपिक है, सो बेसिकली दिस ऑल टॉपिक दे ये सब में आता है। जैसे निमोनिया पेडियाट्रिक्स में भी आता है, मेडिसिन में भी आता है, आप पैथोलॉजी में भी पढ़ते हो, निमोनिया का ट्रीटमेंट फार्माकोलॉजी में भी पढ़ते हो, ठीक है, निमोनिया के ऑर्गेनिज्म आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हो। तो बार बार उसी चीज़ को, एक ही चीज़ को 10 बार क्यों पढ़ना है, ठीक है। सो निमोनिया आप एक ही बार एक साथ मेडिसिन, पेडिया, पैथो, फार्मा से पढ़ दो। tuberculosis same thing, even different musculoskeletal disorders same thing, so you can just go and study that. Suppose like tuberculosis, you can read anatomy of lung, then pathology related to it, then you can just read medicine, and then you can also completely microbiology part topic, and finally you can read the pharmacology treatment part, ठीक है। so basically you can read this। अगर आपने हैरिसन पढ़ रखा है, ठीक है, so basically आप अगर पहले हैरिसन पढ़ रखे हो तो basically then I think और दोज हु आर प्रिपेयरिंग, अगर अभी स्टार्ट भी कर रहे हैं प्रिपेयरिंग एंड दे आर लिसनिंग टू मी, देन आप व्हाट आई फील इज़ कि आप हैरिसन से पढ़ना शुरू करो, ठीक है। जस्ट स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम योर हैरिसन। हैरिसन में जैसे अब किसी भी टॉपिक के बारे में, लंग के बारे में पहले एनाटॉमी दे रखा है, फिर पैथोलॉजी फिर बायोकेमिस्ट्री है उसका, फिर फिजियोलॉजी भी है। सो नाउ जस्ट यू रीड एवरी, उसी हिसाब से पढ़ो। आपको फिजियोलॉजी बुक में अलग से फिर अपना फिजियोलॉजी भी खोल के जितना हैरिसन में दे रखा उस, देखो हैरिसन में काफ़ी दे रखा, वैसे तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, बट या अच्छी तरह से, क्योंकि हैरिसन कॉम्प्लिकेटेड बुक भी है आपको, और अगर अभी पढ़ना शुरू करे हो तो इजी बुक से, क्योंकि आपको अंडरस्टैंड करना है सब कुछ, सो इजी बुक से शुरू करो। हाँ, लेकिन टॉपिक वैसे ही कवर करो, ठीक है। so that is important. Process will not only help to retain the topic for long, so this process will help to retain you for longer period of time, and obviously it will consume less time for reducing the bulk amount which need to be studied. Okay, so now और आप क्या कर सकते हो, अभी शुरू करो शॉर्ट सब्जेक्ट्स। शॉर्ट सब्जेक्ट्स शुरू करो, शॉर्ट सब्जेक्ट्स को 3 दिन में ख़त्म कर दो, ठीक है, 3 days, नॉट मोर देन 3 days। ओके, रिमेनली ठीक है, नीट पीजी में लगभग 65 क्वेश्चंस आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के। INICET में देयर आर प्रोबेबली चांसेस कि आपको 30 to 35 40 क्वेश्चंस दिखेंगे शॉर्ट सब्जेक्ट्स के। नाउ शॉर्ट सब्जेक्ट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, शॉर्ट सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, शॉर्ट सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एटलीस्ट टॉपिक तो रिपीट होता ही होता है, टॉपिक रिपीट होता है, ठीक है, कंसेप्ट नॉर्मली और हाई यील्ड होता है ये। ओके, हाई यील्ड होता है। आप नॉर्मली जैसे आप साइकेट्री को ले लो, साइकेट्री का नॉर्मली जैसे अब नीट में अगर लगभग 10-12 क्वेश्चन आते हैं, अगर 10-12 क्वेश्चन, तो रिमेंबर आपने अगर साइकेट्री पढ़ रखा है, थोड़ी सी अच्छी तरह से पढ़ रखा है, आप ये 10-12 के 10-12 क्वेश्चन राइट कर सकते हो। सो 10 to 12 मार्क्स वहाँ से सीधा आ जाता है आपका, ठीक है, ठीक। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वैसे रेडियोलॉजी, सो रेडियोलॉजी में अब जैसे एम्स अगर कभी कभी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दे देता है, तो आपको जैसे 3-4 क्वेश्चन आ सकता है INICET में। सो नाउ दिस 3 to 4 क्वेश्चन दिस आर दे आर हाई यील्ड। आपको उसमें आप अगर थोड़ा बहुत पढ़ रखे हो, अगर सही तरीके से पढ़ रखे हो, यू विल बी गेटिंग एन, ज़्यादा लंबा चौड़ा पढ़ना भी नहीं। सिमिलरली ऑर्थोपेडिक्स में भी फिक्स चीज़ है, ठीक है, आपको पढ़ने के लिए बहुत फिक्स चीज़ें हैं और वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। सो बेसिकली यू हैव अगर आप 30-35 क्वेश्चन आते हैं, सपोज 35 आते हैं एंड यू आर स्कोरिंग मोर देन 30, सो आपने अपने सेलेक्शन के चांसेस अच्छे कर लिए, क्योंकि अब आपको नेक्स्ट वन जैसे 165 क्वेश्चंस में आपको सेलेक्ट होने के लिए अब ज़्यादा राइट नहीं करना, आपको 165 क्वेश्चंस में नियरली अबाउट 100 क्वेश्चंस ही राइट करने हैं, ठीक है। सो आपको मिस्टेक करने की जगह और मिल गई है, ठीक है। तो बेसिकली यू नीड टू फोकस मोर। जस्ट नाउ आप 3 दिन में रिवाइज करो, ठीक है, इसको रिवाइज करने की कोशिश करो। साइकेट्री के जितने भी ड्रग्स हैं उनको आप फार्माकोलॉजी में उसी टाइम में पढ़ दो। एनेस्थेसिया के जितने भी ड्रग्स हैं, एनेस्थेसिया तो ड्रग्स है, एनेस्थेसिया और फार्मा लगभग बराबर है। शुरू के कुछ टॉपिक्स जो होते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर एंड ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो है, नहीं तो एनेस्थेसिया इज बेसिकली मोर आउट अबाउट ड्रग्स ओनली। ओके, सो बेसिकली वो भी आप फार्मा के साथ और उसी टाइम में फार्मा के साथ इंटीग्रेट करके ख़त्म कर दो, ठीक है। एंड एनेस्थेसिया साइकेट्री के भी जितने भी ड्रग्स हैं उनको उसी टाइम में इंटीग्रेट करके उसी टाइम में ख़त्म कर दो। बात साइकेट्री में अलग से पढ़ रहे हो, फार्मा में अलग से पढ़ रहे हो, सो दैट यू डोंट हैव दैट टाइम। ओके, सो बेसिकली फिनिश दिस 4 सब्जेक्ट्स बेसिकली इन 3 days। नाउ व्हाट सपोज नाउ एग्जांपल, जैसे मेरे दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल, ये टॉपिक ही नहीं पढ़ना है। लाइक जैसे कि ऑर्थोपेडिक्स में आप क्या कर सकते हो, ऑर्थोपेडिक्स में सबसे पहले आप इमेजिंग देख सकते हो। इमेजिंग जैसे कि पेरिस्टल रिएक्शंस क्या कौन सा दिखाता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर, ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड बोन ट्यूमर, डिफरेंट जो बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं, जो बोन ट्यूमर्स होते हैं, उनका रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग क्या क्या होता है। सो बोन ट्यूमर्स का रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग देख लो, ऑस्टियोमाइलाइटिस का रेडियो फाइंडिंग देख लो, डिफरेंट बोन ट्यूमर्स बेनाइन एंड सबका रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स
एक जगह लिख लो, है ना, और उनका पिक्चर भी देख लो, ठीक है, इमेजेस देख लो, दिमाग में बसा लो, खत्म, आपका इमेजिंग खत्म, ठीक है। मस्ट कमन जितने भी हैं, मस्ट कमन किस डिजीज़ के लिए, मस्ट कमन सब चीज़ों को एक जगह रख लो कि मस्ट कमन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, किसी में जैसे MRI होता है, किसी में CT स्कैन, सो दिस मस्ट कमन, एंड किसी में सिर्फ इवन एक्सरे, और किसी में हिस्टोपैथोलॉजी डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी, ओके। तो वो मस्ट कमन सब एक जगह रख लो, सो वहाँ से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है, ठीक है, इमेजिन से। देन यू हैव इन्फेक्शन, सो मोर फोकस ऑन दिस इन्फेक्शंस में ऑस्टियोमाइलाइटिस, पायोजेनिक आर्थराइटिस, एक्टिनोमाइसिस, देन ट्यूबरक्लोसिस पे फोकस करो, और ट्यूबरक्लोसिस से एक क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन आ जाता है ज़्यादातर, ओके। बोन ट्यूमर, अगर बोन ट्यूमर में वो डायग्नोसिस, बेसिकली बोन ट्यूमर they more focus more on benign tumors, okay, and management of malignant tumors and bone cyst, and then you can just also talk about स्पोर्ट्स इंजरी, जिसमें क्रूशिएट लिगामेंट एंड मेनिस्कल इंजरी के बारे में पढ़ लो, एम्पुटेशंस पढ़ लो, टाइप्स पढ़ लो, ठीक है। देन ऑब्वियसली ट्रोमेटोलॉजी पढ़ लो, ट्रोमेटोलॉजी के कॉम्प्लिकेशंस पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बेसिकली आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को निकाल के रख दिया, और उतना चीज़ें पढ़ना है, ठीक है, उतना चीज़ें पढ़ना है। तो ये आप बेसिकली आधे दिन में ऑर्थोपेडिक्स ख़त्म कर सकते हो, जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को निकाल के सब कुछ पढ़ नहीं सकोगे। सो बेसिकली फर्स्ट यू नीड टू मेक व्हाट यू आर, जैसे अपर लिंग में डिसलोकेशंस पढ़ लो, फ्रैक्चर्स पढ़ लो, सर्वाइकल स्पाइन इंजुरीज इंपॉर्टेंट। देन ऑब्वियसली लोअर लिम्स में आप फिर वही डिसलोकेशंस पढ़ लो, फ्रैक्चर्स ऑफ ईव, फीमर, पटेला, टीबिया एंड कैल्केनियम पढ़ लो, कैल्केनियम, एंकल स्प्रेन्स आर इम्पॉर्टेंट, एंड देन ट्रीटमेंट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ओके। एवास्कुलर नेक्रोसिस एंड ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस, ये कॉम्प्लिकेशंस। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स में पोलियो, डिस्प्रोलैप्स, बर्साइटिस, डॉक्ट्राइन्स कॉन्ट्रैक्चर्स पढ़ लो। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में इतने पढ़ लो सर, ये इससे इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है, ठीक है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, देन आर्थराइटिस, सो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आपको दिखा नहीं होगा बेसिकली। सो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में कैसे, जैसे कि रिकेट्स एंड ऑस्टोमेलेशिया है, ऑस्टियोपेट्रोसिस है, पेजेट्स डिजीज है, ऑस्टियोपोरोसिस एंड हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, एक्रांड्रोप्लेजिया, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। सो इनके बारे में पढ़ लो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में, ठीक है। सो बेसिकली आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या, आर्थराइटिस के बारे में, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, गॉट एंड स्यूडो गॉट, चारकोट जॉइंट, सो ये सब मेडिसिन से भी इंटरलिंक कर लो फिर, ठीक है। नर्व इंजरीज में ऑब्वियसली एनाटॉमी से इंटरलिंक कर लो इस चीज़ को, है ना, और जैसे अर्ब्स पाल्सी, अल्नर, नोमेडियल, नेडियल नॉब, इंट्रैक्टमेंट सिंड्रोम्स। पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स में DDS, पर्थीज एंड स्लिप्स कैपिटल फीमरल एपिफाइसिस पढ़ लो, CTB पढ़ लो, जेनुवेरम पढ़ लो। सो इन्हीं से क्वेश्चन आता है। फिगर, सबका फिगर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिगर देख के, सो इमेजेस और ये सब देख के और पढ़ लो। तो आपके पास कितना हुआ, कुछ ज़्यादा टॉपिक हुआ, कुछ नहीं। और पेडियाट्रिक्स में देखो कुछ ज़्यादा टॉपिक्स नहीं बना यहाँ पे, ठीक है। एक टॉपिक यहाँ पे हो गया, एक टॉपिक यहाँ पे हो गया, 2-3 टॉपिक, ओके। ऑर्थो में 4 टॉपिक, 4, 5, 6, ठीक है। सो देर बेसिकली 7-8, और सो बेसिकली आप अगर एक घंटा, 2 घंटा भी एक को देते हो, तो 16 घंटे में लगभग आप पूरा कवर कर रहे हो, ठीक है। तो आपको 2 घंटे भी नहीं लगेंगे, बेसिकली 2 घंटे हर एक में। सो 7-8 टॉपिक्स हैं, 7-8 टॉपिक आप नॉर्मली 10 घंटे में आप पूरा कंप्लीट कर लोगे ऑर्थोपेडिक्स। देयर इज़ नथिंग मोर देन दिस, ओके। अब इतना पढ़ोगे, अभी के लिए आपको सब कुछ जानना ज़रूरी नहीं है, उसमें भी सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो, ठीक है। सो दैट इज़ वे यू कैन अप्रोच नाउ, ओके। रेडियोलॉजी वैसे, सो रेडियोलॉजी वी स्टार्ट फ्रॉम एब्डोमिनल फिल्म्स एंड देन जस्ट टू CT स्कैन एंड MRI, ओके। एंड रेडियोलॉजी में आपका सब चीज़ों में रिसेंट मॉडिफिकेशंस देख लो, रिसेंटली क्या डेवलप हुआ है, ठीक है। वो क्वेश्चंस आपको बहुत पूछेंगे रिसेंट्स के बारे में। एंड बेसिकली इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में रिसेंट्स क्या क्या हुआ है, यू नीड टू नो, ओके। सो ऑब्वियसली दिस इज अगेन SBO वर्सेस LBO, ओके। स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में। पेनक्रेटिक एब्सेस का बहुत ज़्यादा पूछता है। टाइप्स ऑफ बेरियम स्टडीज़ पूछते हैं, बेरियम स्टडीज़ में क्या क्या दिखता है, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ऑसोफिजियल स्ट्रिक्चर्स में क्या होगा, कार्डियक एक्लेजिया का फाइंडिंग्स, हाइटस हर्निया, कार्सिनोमा एसोफेगस, बेरियम मील में क्या दिखता है, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट गैस्ट्रिक अल्सर्स का डिफरेंस, ओके। बेरियम मील थ्रू ट्रॉपिकल स्पूर में जो दिखता है, ऑब्वियसली सीलिएक डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस। सो दिस आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओके। एंड CT स्कैन, MRI ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट। सो एंड obviously finding in your cardiovascular system and
ऑब्वियसली आपके अभी के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दिख रहे हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। देन इन साइकेट्री, ऑब्वियसली साइकेट्री ऑल्सो आप डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ो, चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में पढ़ो, चाइल्डहुड एंड इनमें बेसिकली डिफरेंट डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ो। So basically, and you can have all the diagnostic criteria of all diseases: schizo, depression, mania, hypomania. Okay, so basically bipolar disorder. सो बेसिकली इन सब का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशंस के बारे में, इनका डिफरेंट टाइप्स, सुसाइड का रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा पूछता क्वेश्चन है, एंजाइटी, पैनिक एंड फोबियाज के बारे में, इनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। ओके, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। टाइम फ्रेम, जैसे कि जैसे जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें मोस्ट ऑफ द डेज लेस देन मोस्ट ऑफ द डे अगर एंजाइटी हो रहा है तो उसको GAD कहते हैं, ठीक है। तो टाइम फ्रेम आपको ये क्वेश्चन ज़्यादातर आ सकता है, ठीक है। सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे बेसिकली ये डिसऑर्डर, सो आप स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में, सो नार्कोलेप्सी, स्लीप डिसऑर्डर में नार्कोलेप्सी कहने के लिए ये 3 महीने से ज़्यादा का होना चाहिए। ओके, अटेंशन डेफिसिट ज़्यादा है तभी कहेंगे, ऑपोजिशनल डिफिसिट्स ग्रेटर देन 6 मंथ हो तभी, टॉर्च सिंड्रोम्स के लिए टाइम फ्रेम ग्रेटर देन 1 ईयर हो तभी, ठीक है। सो पैनिक के लिए 1 मंथ से ज़्यादा का आपके पास हिस्ट्री होना चाहिए, किसी चीज़ से पैनिक हो रहा है, स्पेसिफिक चीज़ से। एक्यूट स्ट्रेस के लिए लेस देन 1 मंथ का हिस्ट्री होगा। पोस्ट ट्रॉमेटिक हिस्ट्री के लिए लेस देन 1 मंथ का हिस्ट्री, ग्रेटर देन 1 मंथ का हिस्ट्री होना चाहिए। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स के लिए लेस देन 6 मंथ। सो दिस वे ये दिस टाइम फ्रेम्स आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यहाँ से MCQ आपको पूछेगा, ठीक है। सो ये टेबल आपको काम दे सकता है। सिजोफ्रेनिया आपको 6 महीने से ज़्यादा का हिस्ट्री होना ज़रूरी है। सो दिस आर सिजोफ्रेनी फॉर्म, आपको 1 से 6 मंथ का हिस्ट्री है तो सिर्फ सिजोफ्रेनी फॉर्म होता है। ओके, ब्रीफ साइकोटिक अगर 1 है, डिल्यूजनल के लिए 1 मंथ के लिए ग्रेटर देन 2 वीक्स का होना चाहिए। सो दिस आर बेसिकली ये टाइम पीरियड आपको एग्जाम में यूज होते हैं। सो बेसिकली वेरी मच इंपॉर्टेंट साइकेट्री में आपको टाइम फ्रेम। तो ये फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में फिक्स क्वेश्चन है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। मैलिंगरिंग, फैक्टिशियस डिसऑर्डर, कन्वर्जन डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, बच्चों का ईटिंग डिसऑर्डर में फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। सो दिस आर आपने ऐसे शॉर्ट सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया। शॉर्ट सब्जेक्ट्स में आपने फार्माकोलॉजी इनको भी कभी कभी ड्रग्स के केसेस में इंटीग्रेट कर दिया। देन नाउ जस्ट ब्रेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जैसे कर रहे हो आप, है ना। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आप क्या करो, उसका इम्ब्रोलॉजी, सो इम्ब्रोलॉजी देख दो, एनाटॉमी देख दो, फिजियोलॉजी देख दो, पैथोलॉजी देख दो, फार्माकोलॉजी देख दो। सो बेसिकली वाइज आप कर रहे हो, दिस मेक्स सो ईजी टू रिमेंबर एंड फटाफट ख़त्म करने में। जैसे लंग्स का सॉरी जैसे कार्डियोवास्कुलर का, हार्ट का इम्ब्रोलॉजी सारा कंप्लीट कर दो, कैसे सब हार्ट का डिफरेंट हार्ट कैसे फॉर्म हो रहा है, ऑर्टा कैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट चैम्बर्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, सब उसी टाइम में ख़त्म कर दो। हार्ट के ऑनेटा, फिजियोलॉजी सब खत्म कर दो, ठीक है। सो फिजियोलॉजी रिलेटेड टू हार्ट, ऑब्वियसली एक्शन पोटेंशियल एंड ऑल आप उसी टाइम में ख़त्म कर दो, ठीक है। सो बेसिकली और फटाफट हो जाएगा। एंड उसके बाद आप पैथोलॉजी के बारे में पढ़ोगे, डिजीज पैथोलॉजी, हार्ट से रिलेटेड पैथोलॉजी देख दो सबका, है ना। जैसे रूमेटिक फीवर का पैथोलॉजी देख दो, क्या क्या दिखता है उसमें, है ना। एंड देन आप ट्रीटमेंट रिलेटेड, ट्रीटमेंट डिफरेंट डिजीज, हर डिजीज़ का ट्रीटमेंट देख दो, हैरिसन्स का टेबल्स देख लो, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी क्विक मेथड, ओके, क्विक मेथड। सो पूरा हार्ट का कंप्लीट करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। 10 घंटे में आप पूरा कंप्लीट कर दोगे। सो बेसिकली दैट आपका पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम खत्म हो गया, ठीक है। एक सिस्टम खत्म हो गया। एंड सेम थिंग आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सेम आप वो मेडिसिन में भी होता है, पेडियाट्रिक्स में भी होता है। तो मेडिसिन एंड पेडियाट्रिक्स को कम अलग करके मत पढ़ो, दैट इजी। एंड देन बेसिकली इसमें आप ये कार्डियक आउटपुट इक्वेशन मिस मत करना, क्योंकि एम्स, जिपमर, इनसे कार्डियक आउटपुट इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा है, पल्स प्रेशर क्या है। सो ये कभी मिस नहीं मत करना। सो जस्ट एंड सिमिलर थिंग्स यू कैन डू विथ endocrine system. You just go for embryology, you go for anatomy, you go for physiology, okay. So just you the microbiology, then you can go for your medicine. So basically you can go for your treatment, pharmacology, so this pathology. So this fan system तो आपका पूछते हो, ओके, ऐड कर सकते हो उसमें जो मोर इम्पोर्टेंट, जो कि एम्स और PGI में पूछ सकते हैं। और आजकल हर चीज़ में हो गया, प्लान बना लिया, ठीक है। आपने से प्लान बनाया, शॉर्ट सब्जेक्ट्स को 3 दिन में ख़त्म किया, ठीक है। शॉर्ट सब्जेक्ट्स को 3 दिन में ख़त्म किया। एंड देन यू जस्ट, तो अगर आपने, आपके पास 7-8 सिस्टम है, हर एक सिस्टम को 2-2 घंटे 3-3 घंटे दे रहे हो, 8 सिस्टम दे रहे हो आप। अगर पहले से सब कुछ वेल प्रिपेयर्ड हो तो इस होता है, हाँ, टॉपिक रिपीट हो जाता है बट क्वेश्चन एज सच उसी तरीके से रिपीट नहीं। इट इज़ अ वेरी इजी वे, इजी मेथड ऑफ सारे सब्जेक्ट्स को तो इंटीग्रेट करें तो आपके पास